Hello students, welcome to all of you once again. Now, last time we were doing type 4, that is differentiation of implicit function. So last time हमने unit 8 में से दो examples किए थे from homework section. Now let us continue with unit number 7. Read down question number 9. Okay, very important question. If this is asked in exam, this is going to carry 3 marks. ठीक है, थोड़ा different type है, but procedure वही है, implicit functions. Okay, if sec of x square plus y square upon x square minus y square is equal to a, then we have to prove that dy by dx is equal to y by x. Chalo, write down solution. So recollect what does the working rule says. Consider the given equation. ठीक है, तो लिखिए consider. Write down the given equation is sec of x square plus y square upon x square minus y square is equal to a. ये इक्वेशन हमें दिया गया है. Now we will use the definition of inverse function. तो देखो क्या हो जाएगा. Therefore from here x square plus y square upon x square minus y square is nothing but equal to sec inverse of a मिलेगा हमें. By definition of inverse function, we are going to get this step. Now, after doing this, we are going to differentiate with respect to x. इस step के बाद, ठीक है? तो लिखिए differentiating with respect to x. So as soon as we differentiate with respect to x, we are supposed to take operator on both the sides of equality. तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा. तो इट विल बी d by dx of x square plus y square upon x square minus y square is equal to d by dx of sec inverse of a मिलेगा. Okay. Now to differentiate this further, please see it very carefully students. We will have to apply u by v rule. इसको differentiate करने के लिए हमें u by v rule apply करना पड़ेगा left hand side पे. Right hand side में you observe sec inverse of a constant है and constant का derivative is nothing but equal to 0. तो अब मैं यहाँ पे continue करता हूँ इसको. Okay. So after this step, write down what do we get. Therefore लिखिए. So we'll apply u by v rule. So what does u by v rule say? V, that is x square minus y square will remain same. D by dx of x square plus y square minus, okay, x square plus y square remaining same. D by dx of x square minus y square whole upon v का स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा. तो व्हाट इज डिनोमिनेटर. इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर द होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0. u by v रूल. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन v का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ टू थिंग्स वी कैन डू एट द सेम टाइम स्टूडेंट. ये जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर है वो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो वो 0 हो गया. एट द सेम टाइम टाइम सेव करने के लिए ये जो d बाई डी एक्स ऑपरेटर है ये अंदर ब्रैकेट में दोनों को स्प्लिट हो जाएगा. हाँ, तो वी स्प्लिट दिस ऑपरेटर d बाई डी एक्स इनसाइड द ब्रैकेट. ठीक है. तो रिटर्न व्हाट डू वी गेट. देखो नेक्स्ट स्टेप x square minus y square remaining same. अच्छा, अब वो d by dx split करके दिखाने की जरूरत नहीं है. Okay, now just open up the bracket. I'll show you how it is to be done. d by dx of x square. So what is derivative of x square student. It is nothing but 2x plus, ठीक है. What is d by dx of y square. ध्यान देना आप, y का फंक्शन है and we are differentiating with respect to x. So d by dx of y square क्या होगा. So it is 2y
into dy by dx. Recollect, we have done this last time. ठीक है ना, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें 2y डिवाइड बाई dx मिलेगा माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिमेनिंग सेम, और ये सेम चीज यहाँ पर भी होगा. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. d by dx of x square is nothing but 2x and d by dx of y square is nothing but 2y into dy by dx, close the bracket, and this is equal to, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस इंटू 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 0. तो दो स्टेप हमने एक साथ कर दिए, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया हमने और इसको डिफरेंशिएट भी हमने कर लिया. तो प्लीज मेक अ नोट टिल हियर. So I hope everyone must have written till here. Okay, now what we have to do, now we'll be opening up the bracket, students. You have to collect the dy by dx terms together and the non dy by dx terms together. तो हम क्या करेंगे, ये जो x square minus y square है, it will be multiplied to the first term also and it will be multiplied to the second term also. इंडिविजुअली नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो बहुत सारे टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे. सपोज x स्क्वायर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वाई स्क्वायर, तो इट विल जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स. आई शो यू हाउ डू वी डू. ये जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये एक ही टर्म है. दिस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड टू 2x फर्स्ट. तो देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर विल गो स्टेप वाइज. देयरफॉर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू 2x, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा. तो व्हाट विल दैट गिव अस, राइट डाउन. तो प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है. ठीक है, तो इट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू 2y इनटू dy बाई dx. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक टर्म मान लिया हमने, तो वो 2x को भी मल्टीप्लाई हुआ और वो ये 2y डिवाइड बाई dx को भी मल्टीप्लाई हो गया. सिमिलरली यहाँ पे भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. नाउ बट व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पे इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट विद द माइनस साइन. इट इज माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. ठीक है ना. तो रेड ऑन, व्हाट डू वी गेट नेक्स्ट स्टेप में. तो देखो ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू 2x माइनस टाइम्स. तो क्या मिलेगा, देखो आगे, तो इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू 2x. देखो ध्यान से, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x को मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, माइनस ऑफ माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन, अभी मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ. ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया. तो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू 2y इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0. तो क्या किया नेक्स्ट टाइम हमने, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो ये वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई हो गया. तो व्हाट हैज हैपेंड, minus of minus has become plus x square plus y square into 2y dy by dx and this is equal to 0. ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया. अगर आप x स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उतने टर्म्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे. इट इज नॉट रॉन्ग, यू कैन डू दैट वे आल्सो, बट दिस इज इजियर वे. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दो टर्म्स है, these two terms are not containing dy by dx. उसमें dy by dx नहीं है. और ये जो दो टर्म्स है, this term and this term, these two terms are containing dy by dx. तो अभी हम रीअरेंज करेंगे. जो dy by dx वाले टर्म्स नहीं है, we put them together. Okay, so write down, therefore एक ब्रैकेट ओपन करो. now what will we do, ये जो कर्ली लाइन डाला है मैंने, ये दोनों टर्म्स एक ही ब्रैकेट में आएंगे, बट एट द सेम टाइम वी विल सिंप्लीफाई. नाउ सी व्हाट विल हैपन, 2x विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस. हम ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे ताकि टाइम सेव हो जाए. तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x, so that is nothing but 2 into x cube. ये 2x ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा.
x square into 2x is 2x cube minus 2x into y square. ये वाला ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहाँ पे लिखा. नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, -2x विल बी मल्टीप्लाइड टू बोथ ऑफ देम. -2x से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो विल बी गेटिंग -2x क्यूब minus 2x into y square and the bracket closes. देखो जो कर्ली लाइन डाली है ना, ये दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिखा पर ब्रैकेट ओपन करके लिखा. ठीक है, चलो प्लीज राइट डाउन दिस स्टेप. ये 2x है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पे ये जो -2x है, माइनस साइन एंड 2x, वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों टर्म्स हमें ये नेगेटिव मिल गई. नाउ सी फ्रॉम दीज टू टर्म्स, ये जो अंडरलाइन किया है, डैश डाला है मैंने नीचे, अब ये दोनों टर्म्स में से dy by dx कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो प्लस साइन इन बिटवीन देम, अगेन ओपन अप अ ब्रैकेट, और इन दोनों ब्रैकेट में dy by dx इज कॉमन टू देम एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखना, ये टर्म और ये टर्म में से मैंने dy by dx कॉमन निकाल लिया. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब देखो इसमें से dy by dx तो बाहर चला गया. अब ये जो 2y है, दिस 2y विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट. 2y ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर इंटू 2y, तो दैट इज नथिंग बट 2x स्क्वायर y minus y square into 2y is nothing but -2y cube. -2y cube. अब देखो ये वाले टर्म में से भी dy by dx बाहर गया. तो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो 2y है, this 2y will be multiplied inside the bracket. ध्यान से देखना आप, मैं एरो मार्क कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. तो ये 2y into x square, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे प्लस साइन है, तो दिस इज प्लस 2x square y प्लस दिस इज नथिंग बट 2y cube. ठीक है ना, y square into 2y is nothing but 2y cube. और ध्यान रखना कि इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव मिल गए. प्लीज राइट डाउन दिस स्टेप एवरीवन. I repeat what we have done. ये दोनों टर्म्स नॉन dy by dx वाले हैं, तो उनको मैंने रीअरेंज किया, ब्रैकेट ओपन किया. ये दोनों टर्म्स में से हमने dy by dx कॉमन लिया और एट द सेम टाइम ब्रैकेट भी ओपन किया. ठीक है ना, आप अगर आपको डायरेक्ट नहीं जमता है तो पहले dy by dx कॉमन निकालो, देन यू ओपन अप द ब्रैकेट, उससे स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे बेटर. ओके, चलो नाउ सी दिस फर्स्ट ब्रैकेट, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर. नाउ सी फर्स्ट दिस ब्रैकेट, तो आप देखोगे तो ये 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो रीड ऑन व्हाट इज लेफ्ट आउट विद अस, -2xy स्क्वायर minus 2xy स्क्वायर इज -4xy स्क्वायर ऐड हो जाएगा. ठीक है, प्लस, ये प्लस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है. अब इस ब्रैकेट में देखो आप, ये 2y क्यूब कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y इज नथिंग बट 4x स्क्वायर y into dy by dx, and this is equal to 0. Please check out, ये non dy by dx वाला टर्म है, and this is containing dy by dx and equal to 0. अभी हम क्या करेंगे, जो non dy by dx वाला टर्म है, this term will be shifted to the other side of equality. ठीक है, so what I do is I rub this off. इसको मैं रब कर देता हूँ, तब तक आप यहाँ तक लिख लो. तो आफ्टर दिस स्टेप देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर, ये स्टेप के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. देयरफॉर 4x स्क्वायर y into dy by dx is nothing but equal to 4xy स्क्वायर. ये वाला जो टर्म है वो हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये स्टेप मिला हमें. नाउ लेट्स कैरी आउट द कैंसिलेशन. ये 4 4 कट हो गया. Therefore dy by dx
is nothing but equal to x into y square upon x square into y. Now let us carry out the cancellation. एक x पावर कम हो जाएगा, एक y का पावर कम हो जाएगा, तो dy by dx is nothing but equal to y by x. Hence proof. Cross multiply किया, we have carried out the cancellation and we are left out with dy by dx is equal to y by x. तो देखो ये हो गया proof हमारा. We got the answer. So procedure students exactly same है. We have considered the given function. We have differentiated with respect to x. Then we have collected, we have opened up the brackets, dy by dx terms together, non-dy by dx terms on the other side of equality. And by simplifying, we have proved that dy by dx is nothing but equal to y by x. Please make a note of this solution. Now, as you can observe, this question is over, but मैंने जानबूझ के बोर्ड पे रखा है. Now see what changes can be made in this question. And if those changes are made, how we have to solve that example. अभी जैसे ये वाला example हमने किया, यहाँ पे sec of x square plus y square upon x square plus x square minus y square equal to a दिया था. अभी इस function में क्या changes हो सकते हैं, just note down. Okay, write it as a note. ये ऐसे questions generate होते हैं. हाँ, see. So what can happen? यहाँ पे sec inverse है, यहाँ पे कोई भी दूसरा trigonometric function आ सकता है. Any trigonometric function can come over here. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec, sec तो है already. फिर कोई भी inverse function भी आ सकता है. Sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, cosec inverse, and there can be any constant. तो इसको मैं ऐसे general format पे लिख देता हूँ. Write down. If we are having f of x raised to m plus or minus y raised to m, write down, upon x raised to m minus plus y raised to m is equal to some constant, then dy by dx is always equal to y by x. ये ऐसा आप लिख लो. अब ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा एंट्रेंस के लिए शॉर्टकट भी हो गया. दिस बिकम्स आवर टाइम सेविंग रिजल्ट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एफ स्टैंड्स फॉर एनी फंक्शन. अब ये पॉइंट क्या बोलता है? एफ स्टैंड्स फॉर एनी फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट इज. तो एफ स्टैंड्स फॉर एनी फंक्शन एक्स रेज टू एम, मतलब अगर एक्स और वाई का पावर सेम है, आप देखो फॉर्मेट, x और y का पावर सेम है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, एंड इफ दिस इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट then 100% dy by dx will be always equal to y by x. Unless and until something mentioned, dy by dx हमेशा y by x ही आएगा. जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. अभी सपोज ऐसा दिया है, tan inverse of x minus y upon x plus y is equal to log 10 given. अगर ऐसा दिया है तो अभी रिजल्ट क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन रहने दो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बी इट बी, और अगर ऐसा फॉर्मेट है एंड इट इज इक्वल टू द कांस्टेंट, देन dy by dx जो हमारा आने वाला है वो हमेशा y by x ही आएगा. So if you are doing theory questions, अगर theory questions है तो आपको पता है कैसा करना है. You'll have to do it the same way as we did this question. अगर theory exam में पूछा है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि it is a result and it is dy by dx is y by x. No, वो नहीं कर सकते आप. तो फिर क्या करना पड़ेगा? You will have to solve it. तो क्या करेंगे? x minus y upon x plus y is equal to tan of log 10 हो जाएगा. फिर डिफरेंशिएट करेंगे u by v rule. Exactly same procedure as we did for this problem. फिर ऐसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल cosec inverse of, ठीक है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से e रेज टू a. ये भी तो कांस्टेंट ही है, e रेज टू a. और फिर आपको बोला है कि प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y by x. अगर प्रूव करने को बोला है आपको, थियरी एग्जाम में तो प्रूव करने को बोलेंगे.
तो जो इसके लिए हमने फॉलो किया वही सेम प्रोसीजर हमें इसके लिए फॉलो करना है। एक ही चीज होगी, यहाँ पे जो कोसेक इनवर्स है वहां पे जाके व्हाट इट विल बिकम कोसेक ऑफ ई रेज टू ए हो जाएगा, कोसेक ऑफ ई रेज टू ए हो जाएगा, बट ई रेज टू ए इज अ कांस्टेंट, तो कोसेक ऑफ ई रेज टू ए इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो जो इसके लिए हमने किया हुआ है वही बाकी के एग्जांपल्स के लिए हमें करना है। नाउ ऑब्वियसली ऐसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, अदरवाइज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो फंक्शंस कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। एक प्रॉब्लम मैंने आपको करके बता दिया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे नोट्स में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर टू बी डन बाय यू। तो सेक हो, सेक इनवर्स हो, एनी इट इज ट्रू फॉर ऑल। चलो लिख लो ये आप ये पार्ट। You can write down these two problems as your homework section. ये आप लिख लो, these two problems you do it for your homework section. ये दो problems आप homework के लिए कर लीजिए। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव अहेड। प्लीज रिमेंबर, हाँ वन मोर थिंग, ये जो शॉर्टकट है ये आप थियरी एग्जाम में यूज नहीं करोगे, दिस शॉर्टकट इज ओनली यूज्ड इट इन एंट्रेंस। यू कैन नोट डाउन at the top of the page this time saving result also. Okay students, let's move on to the next question. देखो क्या दिया है इसमें, if cos inverse of x square minus y square upon x square plus y square is equal to 2k, then we have to prove that y into dy by dx is nothing but equal to x into tan square k. Now if you see, ये आपको ऐसा ही लगेगा कि ये प्रीवियस एग्जांपल के जैसे ही करना है। अब इसका एग्जांपल, इस एग्जांपल का जो प्रोसीजर है इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ कुछ और चीज करनी है। ओके, तो चलो लेट्स राइट डाउन, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दिस विल कैरी 3 मार्क्स। तो लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट डाउन सॉल्यूशन, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द गिवन इक्वेशन। ओके, तो राइट डाउन कंसीडर, क्या दिया है हमें, लिखो cos इनवर्स ऑफ x square minus y square upon x square plus y square is equal to 2k, ये दिया है। So therefore from here what do we get, x square minus y square upon x square plus y square is equal to cos 2k हो जाएगा। यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर है, तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया सेम प्रोसीजर यहाँ तक किया। नाउ अभी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिसन केयरफुली, ओके पे अटेंशन आल्सो, इफ वी डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, नो डाउट यहाँ पे u बाई v रूल अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और जो हमें आंसर मिलेगा dy बाई dx दैट विल बी y बाई x मिलेगा अगर हम इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो। बट डिफरेंशिएट नहीं करना है, व्हाई, वी वांट टू प्रूव दिस चेक, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को x इंटू टेन स्क्वायर के प्रूव करना है, तो इसके बाद डेरिवेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा y अपॉन एक्स, और अपने को y अपॉन एक्स नहीं चाहिए, टेन स्क्वायर k है वहां पे। नाउ यू ऑब्जर्व इट इज विजिबल, k अवेलेबल है, तो आई वांट दिस cos 2k। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो चाहिए तो इसको एक ब्रैकेट में डाल दो आप, न्यूमरेटर को 1 ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर को अनदर ब्रैकेट। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रिटर्न क्या मिलेगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। नाउ cos 2k will be multiplied to both the terms, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो लिखो क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं हम, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, दिस विल बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर इंटू cos 2k, ठीक है, प्लस दिस विल बी वाई स्क्वायर इंटू cos 2k। ठीक है, क्या किया हमने, ये जो cos 2k था, this cos 2k is getting multiplied inside the bracket, मतलब ब्रैकेट ओपन किया है हमने, as simple as that to be understood।
Now what we do, we rearrange x square वाले terms on one side and y square वाले terms on other side. तो लिखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, therefore x square remaining, ये x square वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस x square into cos 2k and this is equal to y square into cos 2k और ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम नथिंग बट प्लस वाई स्क्वायर. नाउ एज यू कैन ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो आई जस्ट कंटिन्यू इट आउट ओवर हियर. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में वी आर लेफ्ट आउट विथ 1 माइनस कॉस 2k और राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ 1 प्लस कॉस 2k. ठीक है ना, cos 2k plus 1 is same as 1 plus cos 2k. डायरेक्टली लिख दिया मैंने. Why? Because फॉर्मूला है 1 minus cos 2 theta and 1 plus cos 2 theta का फॉर्मूला. So therefore, what do we get? X square remaining same. This will become nothing but 2 sin square k. Y square remaining same. This will become nothing but 2 cos square k. ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? एक्स स्क्वायर रिमेनिंग सेम. अब ये जो cos स्क्वायर के है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो sin स्क्वायर के अपॉन cos स्क्वायर के इज नथिंग बट tan स्क्वायर के एंड दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक स्टेप हमने स्किप किया है, ये cos स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, तो sin स्क्वायर के अपॉन cos स्क्वायर के tan स्क्वायर के. देखो tan स्क्वायर के हमें चाहिए. ठीक है, बट नाउ सी, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, डेरिवेटिव तो फाइंड करना है. So now we differentiate after this step. So लिखो differentiating with respect to x. So therefore what will happen? Tan square k constant है, so tan square k remaining same, d by dx of x square and this is equal to d by dx of y square मिलेगा हमें. बोथ द साइड वी आर टेकिंग d by dx. tan स्क्वायर के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो tan स्क्वायर के रिमेनिंग सेम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर स्टूडेंट? इट इज नथिंग बट 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज नथिंग बट 2y into dy by dx मिलेगा. ठीक है ना, अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, देखो आ गया जो आंसर चाहिए हमें. तो यू कैन रीअरेंज, देयरफॉर y dy by dx, y dy by dx is nothing but equal to x into tan square k. hence proved. यही हमें चाहिए था. ठीक है, तो अभी प्रीवियस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? कि प्रीवियस एग्जांपल में अगर dy by dx is equal to y by x प्रूव करने को दिया है, तो इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे. we will take derivative after this if it is given to us prove dy by dx is y by x, जैसे previous example में. otherwise if something different is there we are going to follow this. चलो please make a note of this solution now. लिख लो आप ये. okay, so now let's move on to the next question, that is question number 11. लिख लो आप. if y is equal to under root of log x plus under root of log x plus under root of log x is continues till infinity, then we have to find out dy by dx. Now if this question is asked in exam, it will carry 2 marks. Question simple है. अभी थोड़ा जरा फंक्शन देख के थोड़ा डरावना लगता है, बट उतना है नहीं. इट्स अ सिंपल वन. चलो रिटर्न सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. तो लेट्स कंसीडर दिस गिवन y. तो लिखो कंसीडर रिटर्न y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x. ये अरेंजमेंट आप लिख लो.
this will continue infinite times and number this expression as 1. ये जो y हमने कंसिडर किया है इसको आप इक्वेशन 1 दे दो. अब यहाँ पे टोटली द प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल. ठीक है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. राइट डाउन स्क्वायरिंग, इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर y का स्क्वायर विल बी गेटिंग y स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये जो सबसे बाहर वाला रूट है, जो सबसे बाहर वाला रूट है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट विद अस, ये जो रूट है ये एलिमिनेट हो जाएगा. तो देखो क्या बचेगा, log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x. दिस कंटिन्यूज टिल इंफिनिटी. ध्यान से देखो आप वापस क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग किया तो y का स्क्वायर हो गया और ये जो सबसे बाहर वाला रूट है, सबसे बाहर वाला रूट है वो एलिमिनेट हो गया और जो रूट के अंदर है वो बच गया. वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टूड, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. स्क्वायरिंग किया तो यहाँ से ये रूट निकल गया और यहाँ पे ये y स्क्वायर हो गया. चलो प्लीज मेक अ नोट टिल हियर. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली. इसके बाद अभी क्या करना है हमें, ये लिखने के बाद अभी ये जो पार्ट है, आई जस्ट मार्क दिस, ये जो रूट वाला पार्ट है, दिस एंड दिस दे आर सेम ना, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर y स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू log x प्लस y. ऐसा क्यों हो गया, ये y क्यों बन गया, तो जस्ट ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 देखो आप, y क्या है, यही तो y है. दिस इटसेल्फ इज नथिंग बट y. अब मेरे को बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इधर तो 2 बार लिखा है, इधर 3 बार लिखा है. अरे क्या 2 बार लिखा है 3 बार लिखा है, ये इन्फिनिटी है ना, मीन्स इट इज इनफाइनाइट. 2 बार नहीं, ये इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम. तो दे हैव सेम मीनिंग. आई टेल देम दिस एंड दिस मीन्स द सेम. इनफाइनाइट टाइम 2 3 4 5 6 बहुत सारे बार है, इनफाइनाइट टाइम्स है. तो दिस इटसेल्फ इज नथिंग बट y. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ये y बन गया. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, वी ब्रिंग दिस y टू द लेफ्ट हैंड साइड. रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर व्हाट डू वी गेट, लिखो देयरफॉर y स्क्वायर माइनस y इज नथिंग बट इक्वल टू log x रिमेनिंग. अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे. राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग, ऐसा लिखो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So therefore, what do we get on the left hand side, students? So d by dx of y square minus d by dx of y is equal to d by dx of log x. d by dx लेना पड़ेगा दोनों साइड पे. ठीक है, we are already familiar with this procedure since a long time. अब therefore क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज 2y इंटू dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x. ठीक है, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, डिफरेंशिएट किया. नाउ वी विल टेक dy बाई dx कॉमन. ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट dy बाई dx ना. तो देयरफॉर 2y minus 1 into dy by dx is nothing but equal to 1 by x. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx is equal to what, तो 1 upon, it is 1 upon x into 2y minus 1 and this itself is the final answer in dy by dx. यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. प्रॉब्लम इज ओवर.
लिख लो, फिर एक इससे शॉर्टकट रिलेटेड है, देयर इज वन टाइम सेविंग रिजल्ट आल्सो दैट वी कैन अप्लाई इन एंट्रेंस एग्जाम, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, पहले आप ये नोट डाउन कर लो यहाँ तक सबसे पहले। चलो नाउ लेट अस राइट डाउन दैट टाइम सेविंग रिजल्ट, लिख लो आप, दिस इज फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अभी जो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ या टाइम सेविंग रिजल्ट बोलो आप उसको, दैट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी आप लिख लो टाइम सेविंग रिजल्ट, जो मैं नोट डाउन एट द टॉप ऑफ द पेज ऑल्सो, अब वो आपके ऊपर है। इफ y is equal to अंडर रूट ऑफ fx प्लस अंडर रूट ऑफ fx plus under root of fx, if this continues till infinity, if this continues till infinity, then dy by dx is nothing but equal to f dash of x upon 2y minus 1, ये होता है। y is equal to this arrangement, then dy by dx is equal to f dash of x upon 2y minus 1। कैसे देख लो, इसके ऊपर मैं समझा देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट लॉग एक्स लॉग एक्स। अभी एफ एक्स के जगह पे क्या है, लॉग एक्स है, तो शॉर्टकट क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। मतलब जो फंक्शन रूट के अंदर है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, एफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो अभी देखो ये प्रॉब्लम में रूट के अंदर क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो देखो ना 1 बाय एक्स, so it is 1 by x into 2y minus 1, so it is f dash of x upon 2y minus। अगर सपोज रूट के अंदर यहाँ पे tan x होता, log x के जगह पे अगर tan x होता, तो tan x का डेरिवेटिव क्या मिलता, sec square x। तो आंसर क्या हो जाता हमारा, sec square x upon 2y minus 1। अगर इसके अंदर e raised to x होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x होता, तो f dash of x में भी e raised to x ही मिलता, तो e raised to x upon 2y minus 1 हो जाता। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, तो जो भी फंक्शन इस रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव अपॉन 2y minus 1 आ जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर दिस शॉर्टकट, या तो एमसीक्यू में आप यूज कर सकते हो, है ना, 12th स्टैंडर्ड में भी एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू में यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज इट इन एंट्रेंस एग्जाम। थियरी में, थियरी एग्जाम में इट इज नॉट अलाउड। अगर थियरी प्रॉब्लम है तो आप ये शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, 0 मिलेगा आपको। दिस इज द मेथड दैट यू विल बी यूजिंग इफ इट इज आस्क्ड इन थियरी एग्जाम। ओके, नोट डाउन दिस टाइम सेविंग रिजल्ट आल्सो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, and this is the last question for differentiation of implicit function। implicit function का ये last question है, note down कर लो आप, question number 12। if under root of y plus x plus under root of y minus x is equal to c, then show that dy by dx is equal to y upon x minus under root of y square by x square minus 1। if this question is asked, ये आएगा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। नोट डाउन द वेटेज एंड द क्वेश्चन, दोनों आप नोट डाउन कर लो, देन विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ इट। ठीक है, चलिए लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये इक्वेशन हमें दिया है और dy बाई dx हमें प्रूव करना है, मतलब वो डिराइव करना है। ठीक है, तो यू नो द प्रोसीजर। चलो कंसिडर राइट डाउन द गिवन इक्वेशन। अब थोड़ा सा लेंदियर है सॉल्यूशन, 4 मार्क का प्रॉब्लम है, तो हैज टू बी स्लाइटली लेंदियर। तो कंसिडर राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इज रूट ऑफ y plus x plus root of y minus x is equal to c। अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। so write down differentiating with respect to x।
तो क्या मिलेगा, वी आर सपोज टू टेक डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी, देयरफॉर यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ c. ऑपरेटर u प्लस v रूल, दोनों ऑपरेटर दोनों को स्प्लिट हो गया. नाउ विल अप्लाई रूट एफ एक्स का फॉर्मूला. तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इट इज 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. तो रिटर्न इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, रिटर्न इट विल बी 1/2 रूट ऑफ y प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स रूट एफ एक्स इज 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा. तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. अब ये दोनों का डेरिवेटिव लेना है. रिटर्न नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर. अच्छा, और एक चीज हो सकती है, यहाँ पे से जो 1/2 है ना, वो 1/2, ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा. बाई 2 यू कैन कैंसिल इट आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो 0 के साथ चला जाएगा. चलो ठीक है, और एक स्टेप लिख लेते हैं. तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 1/2 रूट ऑफ, चलो 2 को हटा ही देते हैं हम यहाँ से, तो रूट ऑफ y प्लस एक्स, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y. तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 plus from here what we are left out with 1 upon under root of y minus x into यहाँ पे बचेगा dy by dx minus 1 and this is equal to 0. 2 कॉमन आ गया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ. नॉट टू शो ईच एंड एवरी स्टेप, इतना समझ में आना चाहिए हमें. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे कॉमन लेके. Now what will happen, we open up the bracket by dy by dx terms together and non dy by dx terms together. तो क्या होगा, ये जो 1 upon under root of y plus x है, this term will be multiplied inside the bracket. और यहाँ पे ये रूट वाला 1 upon root वाला term will be multiplied. Brackets open करने हैं. In simple language, we have to just open up the brackets. Okay, so write down क्या मिलेगा, therefore 1 by root of y plus x into dy by dx, ये टर्म इसको मल्टीप्लाई हो गया, प्लस दिस टर्म इंटू 1. so that is nothing but 1 upon root of y plus x. यहाँ पे भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1 upon root of y minus x into dy by dx, ठीक है, माइनस 1 by root of y minus x and this is equal to 0. So simply we have opened up the brackets and written the steps. ठीक है, अभी यहाँ तक आप लिख लो, since you are already ready, यहाँ तक लिख लो, फिर मेरे को ये रब करना पड़ेगा because I can't write down. Second half में वो accommodate नहीं होगा. So just write down till here first of all. ठीक है, अभी ये मिलने के बाद क्या करना है हमें, ऑब्जर्व फ्रॉम दीज टू टर्म्स, ये दोनों टर्म्स में से हम dy by dx कॉमन ले सकते हैं एंड दीज टू टर्म्स विल बी शिफ्टेड टू द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, तो लिख लो आप, तब तक मैं ये रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट. ठीक है, तो लेट अस टेक dy by dx कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. So therefore write down what do we get, 1 upon root of y plus x plus 1 upon root of y minus x into dy by dx. ये दोनों टर्म्स में से dy by dx कॉमन ले लिया.
अभी ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी. दिस विल गो टू द राइट, so it will become 1 upon root of y minus x, और ये टर्म तो -1 upon root of y plus x. This is what we get on the right hand side. Shifted the terms, non dy by dx terms to the right. Now ये वाले ब्रैकेट में और ये वाले ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे. Let us take LCM in these two brackets. तो देखो क्या मिलेगा, therefore you can open up a bracket, LCM लेंगे तो 1 into this into this plus this into this, तो क्या मिलेगा, under root of y minus x plus under root of y plus x whole upon root of y plus x into root of y minus x times of dy by dx is equal to, हाँ ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया तो ये वाले ब्रैकेट के अंदर भी एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ y माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ y माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ y प्लस एक्स, है ना. एलसीएम लिया तो वी आर गेटिंग दिस स्टेप ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हो दिस टर्म रूट ऑफ y प्लस एक्स, ये रूट ऑफ y प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रूट ऑफ y माइनस एक्स और ये रूट ऑफ y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना. अभी और एक स्टेप हम सेव करेंगे. एक्चुअली दिस विल गो इन द न्यूमरेटर एंड दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई dx इधर ही रहेगा, ये वाला टर्म इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब जब ये टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट ऑब्वियस है, तो वो चीज हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ये रूट ऑफ y प्लस एक्स, ये रूट ऑफ y प्लस एक्स गया, ये रूट ऑफ y माइनस एक्स और ये रूट ऑफ y माइनस एक्स गया. अब ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, ठीक है. चलो जस्ट कैंसिल दिस आउट. बाय दैट टाइम आई रब दिस ऑफ, इसको मैं रब कर देता हूँ. Therefore, अभी हमारे पास क्या बच गया, लिखो therefore dy by dx is nothing but equal to, now we are left out with under root of y plus x minus under root of y minus x whole upon, ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा बट आई विल रीअरेंज. a plus b is same as b plus a, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो दिस विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है. रिपीट, ये दोनों टर्म जिसके साथ कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया, सिर्फ इसको रीअरेंज कर दिया हमने और इसको लिख दिया. नाउ ऑब्वियसली dy बाई dx हमें मिल गया बट फाइनल आंसर नहीं मिला. अगर फाइनल आंसर इज दिस, वी हैव टू रीच दिस, ये हमारा डेस्टिनेशन है. Now we have not reached the destination, we have to reach the destination. तो अभी हम क्या करेंगे, we'll be rationalizing the denominator, ठीक है. चलो ये स्टेप लिख लो. Now we will rationalize the denominator. तो ऐसे लिखो rationalizing या rationalize denominator, मतलब इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो लिखो क्या मिलेगा, therefore dy by dx is equal to, you can open up a square bracket, ये तो एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे, इनटू डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स. एंड क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट.
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो आई नीड टू रब दिस ऑफ, so please write down till here. ठीक है, so I rub this off. ठीक है, तो रैशनलाइजेशन वाला ये स्टेप हमने ऑलरेडी लिख लिया, रैशनलाइज हमने किया, तो ये स्टेप भी रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑब्जर्व a minus b into a minus b, so this is going to become a minus b the whole square. ठीक है ना, so write down therefore dy by dx is nothing but equal to, ऐसा हो जाएगा रूट ऑफ y प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b इंटू a माइनस b, तो दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, थोड़ा डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट y प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इट विल बी y माइनस एक्स, क्लोज द ब्रैकेट। वैसे हम ये a माइनस बी द होल स्क्वायर भी डायरेक्टली कर सकते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है कुछ स्टेप। ठीक है, डिनोमिनेटर थोड़ा डायरेक्टली किया है हमने। नाउ यूज a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इन द न्यूमरेटर, तो लिखो क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाय dx इज फर्दर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो इट इज y प्लस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू b, तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ y प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ y माइनस एक्स प्लस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें y माइनस एक्स मिलेगा, होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स, तो डिनोमिनेटर इज नथिंग बट 2x। चेकआउट, अभी इस स्टेप को मैं रब कर देता हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करके हमने सिंप्लीफाई किया इसको। Now let's simplify this quickly and finish it off now. So dy by dx is further equal to, now observe the numerator carefully, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो y प्लस वाई इज नथिंग बट 2y माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में 2x ऑलरेडी है, 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर dy बाय dx is further equal to y minus root of y square minus x square divided by x। एक स्टेप हमने स्किप किया है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आएगा, जो 2 कॉमन आएगा वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल बी लेफ्ट आउट विद दिस। अब देखो हम वी आर ऑलमोस्ट देयर, जो हमें प्रूव करना है वहां पे हम बस पहुंच ही रहे हैं। नाउ व्हाट वी डू, वी स्प्लिट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करेंगे, तो जब हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो रिटर्न व्हाट विल बी dy बाय dx, इट विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब ध्यान से डालना, ये रूट सिर्फ न्यूमरेटर के लिए, मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है वो रूट नीचे से ऊपर तक डाल देते हैं, स्टेट केयरफुली, रूट इज ओनली फॉर द न्यूमरेटर, so please note down till here. Now this x will go inside the root। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिखो इसके बाद, आफ्टर दिस स्टेप देयरफॉर dy by dx is nothing but equal to y by x। ये तो क्वेश्चन है, ये आप मत देखना ऊपर, ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस दिस विल बी रिटर्न एज अंडर द रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ये जो x है वो रूट के अंदर जाएगा और ये x रूट के अंदर जाके x स्क्वायर बन जाएगा. स्प्लिट अप. Therefore, dy by dx is equal to y by x minus under root of, this is going to become y square by x square minus 1. Hence proved. देखो. So we have simplified and we have got the appropriate answer and dy by dx. So please make a note of this. So I hope you must have written this, students. So with this problem, we finish off with our differentiation of implicit function. So working rule मैंने आपको लिख के दिया. We have done so many examples, 12 and 14 examples we have done it in class, dependent on implicit function. बाकी के जो examples है homework section के, unit 7 is classwork, unit 8 is your homework section. तो unit 8 के जितने भी problems है और textbook के implicit function के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है दे आर ऑल एज होमवर्क सेक्शन. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क सेक्शन फॉर नेक्स्ट टाइम. मैं आपको लिख के दे देता हूँ कौन सा एक्सरसाइज बेस्ड है इस पे. ठीक है, तो राइट डाउन. एक तो है आपको योर होमवर्क सेक्शन यूनिट 8 ऑल प्रॉब्लम्स. कुछ एक दो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, यू कैन लीव देम. यूनिट 8 के ऑल द प्रॉब्लम्स इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है. एंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इज डिपेंडेंट ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, एज वेल एज question number 4 is dependent on implicit function, as well as question number 5 is also dependent on implicit functions. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं जो हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं. एंड फॉलो द सेम वर्किंग रूल व्हाट वी हैव फॉलोड फॉर द एग्जांपल्स दैट आई डिड इट इन क्लास. So it can be easily done. So homework section, unit 8 all the problems, and exercise 1.3 question 3, question 4 and question 5, they are completely dependent on implicit function and you can very easily do. जब आप exercise करोगे या homework करोगे ना, तो जो मैंने problems class में करवाए हैं उसको आप refer करो and then you do these examples. It's my guarantee you will be easily able to do it. Okay, so we stop for today for implicit function. Next time we meet, we move on to a new concept. Keep studying. Okay.